Hello to all my dearest watchers who are watching this video and welcome to my channel. I am sure that you will really like my this video in which I am going to tell about to you the methods of preventing food, and I want to ensure you that you must understand whole concepts. So are you guys ready? Let's begin the paragraph. The process by which spoilage of perishable food is prevented using chemical और physical method is called food preservation. मीन्स जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फूड की स्पॉयलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. ओके, नाउ हाउ वी prevent our food by taking some methods and steps. Let we see point by point. So moving on the first paragraph, by cooling. The spoilage of food such as vegetables, meats, fruit, boiled milk, curd and cooked food can be prevented by keeping at low temperature in refrigerator और डीप फ्रीजर. लो टेम्परेचर में हम लोग इस काइंड के फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, और क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर जो है रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज इनएक्टिव द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स. ये दो रीज़न है कि हम लोग लो टेम्परेचर में फूड को रखते हैं. सो दैट्स हाउ द फूड नॉट स्पॉइल. ओके, by heating and cooling treatment. Pasteurization. About the pasteurization I have talked you in my first video in terms to remember, right? So now we studied about this process. Okay, we not studied in deeply, but let's understand what is it. Okay, it is a process which prevent the milk. Okay, and how it prevent milk? एक फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे लुइस पैस्चर, जिन्होंने इस प्रोसेस का डिस्कवर्ड किया था, डेवलप किया था टू प्रिवेंट मिल्क. एंड इन दिस प्रोसेस और मेथड वी हीट मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर लाइक 60 to 65 डिग्री सेल्सियस. ओके, अबाउट 30 minutes. दैट मेक्स killing of bacteria and then quickly cool it at very low temperature. Okay, this will retards the growth of bacteria and that's how the milk prevent. Now our next point, by dehydration. Dehydration means simply removal of moisture. Okay, as we know that, I'm pretty sure that you will all know that moisture promotes the growth of bacteria. So if there will no moisture, the food will save. So in fruits and vegetables there are a lot of moisture, right? So to remove it we use this process. Okay, sun drying और smoking की प्रोसेस यूज़ करके हम लोग मॉइस्चर को रिमूव करते हैं और फूड को प्रिवेंट. ओके, क्लियर? Our next point is by using salt sugar. The presence of high concentration of salt 15 to 18% removes water from the food material. This retards the bacterial growth to prevent food spoilage. Let's see. You will see जैम हो गया, जेली हो गया, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, हम लोग उसको कितने दिनों तक रखते हैं, फिर मार्केट में वो शॉपकीपर के पास कितने दिनों से होती है. सो हाउ these food materials is not spoiling? These are preventing by using salt sugar, right, in a lot of quantity. Okay, साल्ट भी बहुत सारे फूड में हाई कंसनट्रेशन में देते हैं, फिर शुगर कोई 68% से देखें ना हाई कंसनट्रेशन है, दे के हम लोग क्या करते हैं, फूड्स को प्रिवेंट करते हैं. हाउ? क्योंकि जो ये शुगर और ये साल्ट का हाई अमाउंट जो हम ऐड करते हैं तो ये मॉइस्चर को कम करता है और दैट विल रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. है ना? क्या होता है, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है कम होती है, स्टॉप होती है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. विनेगर, ऑयल, साइट्रिक एसिड स्पीसीज also act as food preservatives by not permitting bacteria to grow in this environments. Vegetables, fruit, meat, fish are generally preserved by this method. To understand this paragraph, I want to मैं आचार का जिक्र करना चाहूँगी.
pretty sure that you all have listened the about the word pickles, right? You all really like, right? नाम लेते ही मुंह में पानी आने वाला होता है ना. तो क्या होता है, पिकल्स बहुत टेस्टी होते हैं. एंड हाउ दे विल, उनकी अवेलेबिलिटी, दे विल एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अवेलेबल एट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे होती है. So that's how in pickles we add oil, vinegar and acid amount and also spices, right? That will make them so longer. Okay, जो अचार को longer time तक available ये सब material जब हम लोग ऐड करते हैं तो हो पाता है, क्योंकि जो विनेगर होता है, ऑयल होती है या फिर साइट्रिक एसिड या स्पाइसेस जो है अपनी इन्वायरमेंट में जो वो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे वो बैक्टीरिया का ग्रोथ होने ही नहीं देती है और इस तरह मटेरियल बहुत समय तक चलता है. अब देखिए, टमाटर का अचार होता है ना, या फिर हमारा मैंगो का होता है, तो क्या ऐसे आम इतने लंबे तो समय तक रह सकता है? नहीं. लेकिन जब हम लोग इसका पिकल्स बनाते हैं तो व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? So moving on, our next paragraph is by heating and canning. Heating and canning is a very nowadays using very vastly in our day-to-day life, right? Heating food at 110 degrees Celsius for about 30 minutes kill all food spoiling microorganisms. जो microorganism food को spoil करती है, जैसे एस्पेरिगिलस, ये सब, उसे मारने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, फूड मटेरियल को 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं. मान लीजिए हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, ठीक है, इस प्रोसेस के अंतर्गत. उसके बाद हम लोग जो है उसको एक केन में, जहाँ पे ये नहीं इंटर कर सके, मतलब वैक्यूम इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मतलब जहाँ हवा की एंट्री नहीं हो सके, ठीक है, वैसे जगह पे पैक कर देते हैं. इससे क्या होता है कि पहले हीट करते हैं हम लोग इन अ हाई अमाउंट. Heating in a high amount kill the bacteria, and when we pack it in a vacuum, under a vacuum or can, it will remain safe for longer periods. Is that clear? Clear ना. अब next paragraph हमारा, by using chemical preservatives, जो हम लोग ने in our above points we have studied, these are physical methods. Now we studied about the chemical preservatives, ठीक है. Food can also be प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग केमिकल, सर्टेन केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके जो है हम फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं उन्हें किल कर सकते हैं, ठीक है. वैसे केमिकल कंपाउंड, जो भी केमिकल होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं उसे केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं. और जो वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पॉइल ऑफ फूड, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं. सोडियम बेनोजेट, पोटेशियम मेटाबेसिसल्फेट, सोडियम बेनोजेट या फिर जो पोटेशियम मेटाबेसिसल्फेट होता है, ये सब क्या है, केमिकल प्रिजर्वेटिव, मतलब केमिकल, ऐसे केमिकल है जो फूड को प्रिजर्व करते, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेनोजेट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस, जो जूस वगैरह जो पैक होता है हमारा मार्केट में, वो सब को सोडियम बेनोजेट केमिकल का यूज़ करके ही प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है. और पोटेशियम मेटाबेसिसल्फेट का यूज़ करके हम लोग फ्रूट्स वगैरह या फिर जैम्स, जेली, जो कट फ्रूट होता है, फिर जेली फ्रूट या फिर जेलीज, जैम, इन सबको प्रिजर्व करते हैं, ओके. नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, बाय वैक्यूम पैकिंग. nowadays all children like to eat these kind of food which are packed in packing like kurkure, chips, right? So how these food are longer periods, taking for longer periods, लंबे समय तक कैसे रहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स तक, तो देखिए कैसे रहते हैं. मोस्ट स्नैक्स particularly those contain oil are nowadays marketed in sealed airtight packing. The air from such packages is removed by evacuation and flushed with oxygen free nitrogen. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, जो स्नैक्स जिसमें खास करके ऑयल कंटेन होती है, जिनके नाम मैंने अभी आप लोग के सामने लिए, वो सब जो है पहले तो एयर टाइट, जिसमें एयर एंटर नहीं कर सके, वैसे पैकेज में सील करके पैक कर दिया जाता है. उन पैकेज से इवैक्यूएशन प्रोसेस के थ्रू सारे ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन वाले गैस फुलफिल कर दिए जाते हैं. ओके, क्लियर. नाउ वी हैव
studied all the methods to prevent food, right? So now we know about the advantages of food preservation, यानी बेनिफिट क्या है, हम लोग क्यों करते हैं फूड को प्रिवेंट भाई, तो जानते हैं चलिए इस 4 पॉइंट्स के थ्रू। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज, ये जो है फूड का वेस्ट रोकता है, कम करता है, ठीक है। इट मिनिमाइज द फूड वेस्टेज। सेकेंड, इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड, जो फूड का स्टोरेज पीरियड होती है, शेल्फ लाइफ होती है पेरिशेबल फूड की, जिसमें लॉट ऑफ मॉइस्चर होते हैं या फिर जो भी नहीं टिकने वाली होती है वो भी बहुत लंबे समय तक रहती है। थर्ड, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन मटेरियल, जो फूड मटेरियल जिस सीज़न में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हर फूड मटेरियल हर सीज़न में नहीं ना मिलता है, दे आर found in a particular season, so we can also get out of season food material by preservating, okay। And last point is it ensure the availability of perishable food materials even at a distant place, यानी अब हम लोग कहीं ट्रैवलिंग करेंगे या फिर कहीं अगर फूड को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो भी बहुत दूर दूर अगर भी जाएगा फूड ट्रांसफ़र होगा तो भी बहुत लंबे समय तक ये रहेगा। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ and advantage of food preservation, so we have must each and every one try to preserve food, because जितने भी हम लोग ने methods पढ़ी these are so simple, right? And yeah, if you have any doubt in methods of food preservation, please ask me on comments so that I will solve it. And in our next 2 videos we will know about the nitrogen fixation and nitrogen cycle, so please must watch my वीडियोज़ आई विल अपलोडेड सून, ओके। सो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, तो अब हम फूड प्रिजर्वेशन की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड आई रियली होप यू विल लाइक इट एंड एन्जॉय इट एंड ऑल्सो स्टडीड क्लियरली योर कॉन्सेप्ट्स विथ अ लॉट ऑफ फन। बाय बाय।